Good morning, students, and welcome back to our next class in the year international lesson. And in this class, we are going to discuss about the industrialization process in the colonies. So, first of all, we'll understand what is a colony. A colony is any place in the world which is exploited by the home country for its own benefit. Means the colony's resources they are utilized by the home country to expand its own business, its own people's interest and others. तो कॉलोनी का मतलब ऐसा जगह से है जिसको किसी दूसरे ताकतवर देश के द्वारा कब्जा किया जाता है और उसको अपने फायदे के लिए यूज किया जाता है, उसको कॉलोनी हम लोग कहते हैं. So India can be called a colony of the British because it was exploited by the Britishers. The resources of India were utilized, coal and other resources also, and they were utilized for the benefit of Britain. तो ब्रिटेन के फायदे के लिए इसको यूज किया गया था, इसीलिए इंडिया को हम लोग कॉलोनी कह सकते हैं ब्रिटेन का. और भारत एक उपनिवेश रहा ब्रिटेन का 190 सालों तक. सो इंडिया कैन बी कॉल्ड ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन एंड इट रिमेन द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन अप टू 190 years. And from the Battle of Plassey 1757, the foundation of the British Empire was laid in India, and till 1947 when India became independent, it was a colony of England. In 1947, on 15th of August, we became independent from British rule and we became a sovereign state. So how was the industrialization process in the colonies? Before the coming of British, industrialization was in very advanced form in India, and the weavers of India, they made the clothes, particularly of silk, cotton, textiles, and the printed clothes were all made. So these clothes, they were utilized by the Indian weavers for their own benefit. So the ports of Surat, Machilipatnam, the ports of Surat and Machilipatnam were there, from which these textiles, spices and the goods of India or the Indian handicraft they were exported. तो कहने का मतलब है कि भारत पुरातन काल से ही समृद्ध रहा है टेक्सटाइल्स में, कपड़ों में, सूती के कपड़े हों, रेशम के कपड़े हों, और जितने मतलब हैंडमेड आर्टिकल्स हैं उस सिलसिले में समृद्ध रहा है. और इसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था अफ्रीका के कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में एंड यूरोप में. तो इस तरह से इंडिया का जो व्यापार था समृद्ध था. When the British came in India, the East India Company was there, it began to look at the trade with India for its own benefits. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले क्या किया कि इंडिया के साथ ट्रेड किया और यहाँ के जो सामान थे वहाँ उसको यूरोप के बाजारों में बहुत ऊंचे दाम पे बेचा ले जाके. Then it realized that if we want to capture India, then first of all we have to destroy the local textiles and the local weavers, they were to be deprived of the goods. So first of all, when the British East India Company they started capturing India from Bengal and then other places in India, they first of all disturbed the life of weavers. उन्होंने बुनकरों का जीवन एक तरह से मतलब बर्बाद करना शुरू किया, और जो बुनकर पहले अपने मुंह मांगे दाम पे मतलब कपड़े बेच सकते थे उनको इससे मतलब हटा दिया. Now the weavers have to take the interest of the company and to do work according to company. अब जो वीवर बुनकर जो कंपनी के क्षेत्र में निवास करते थे उनको कंपनी के हिसाब से सामान बनाने पड़ते थे और फिर उस सामान को मतलब कंपनी को सप्लाई करना पड़ता था. So there was a person called Gomasta. A person called Gomasta was deputed by the British to look after the interest of the company. तो गोमास्ता क्या था? एक अधिकारी था जो इंडियन था ओरिजिन में, और वो गांव के जो वीवर्स थे उनको एडवांस पैसे देता था, उनसे कपड़े बनाता था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कीमत थी उस पर खरीद के फिर एक्सपोर्ट होता था. तो इस तरह से उन्होंने वीवर्स का मतलब जो व्यवसाय बहुत जो फलता फूलता व्यवसाय था उसको चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया. देन द सिटीज ऑफ सूरत एंड मछलीपट्टनम दे डिक्लाइन. तो सूरत और मछलीपट्टनम जो बहुत समृद्ध शहर थे जहां से एक्सपोर्ट होता था बाहर गल्फ कंट्रीज को, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, मिडिल ईस्ट को, उनका व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो गया, तबाह हो गया. और नए जो शहर थे जो ब्रिटिश जिसको ब्रिटिश ने डेवलप किया, पर्टिकुलरली कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, दे ग्रीव इन इंपॉर्टेंस. तो इन तीन शहरों का इंपॉर्टेंस बढ़ गया ब्रिटिश रेजिम में, और यहाँ से जो समृद्धि थी उनकी शुरुआत हुई ब्रिटिश का. ब्रिटिश ने यहाँ के लोकल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया. वे जानते थे कि जब तक इंडियन पीपुल को आत्मनिर्भरता से हम लोग रोक सकते हैं तब तक हम राज नहीं कर पाएंगे. इसलिए पहले उन्होंने यहाँ के जो लोकल टेक्सटाइल्स थे उसको बर्बाद किया, वीवर्स का जीवन तबाह किया और अपने फायदे के लिए उनको यूज किया.
So the Britishers exploited the Indians, and after the Industrial Revolution, when a lot of goods were made by the machines, then the textiles made in Britain they were exported in India. जो पहले भारत एक्सपोर्टर हुआ था टेक्सटाइल का, वो अब इंपोर्टर बन गया, इंपोर्टर ऑफ मैनचेस्टर मेड गुड्स. After the Industrial Revolution, when the textiles of Britain they started flowing in India, means coming in India, they were all made in Manchester. तो मैनचेस्टर एक शहर है इंग्लैंड का, वहां पे कपड़े या टेक्सटाइल जो है वहां कारोबार बहुत ज्यादा होता है. तो वहां से जो कपड़े बन रहे थे मशीन्स के द्वारा वो इंडिया में आ रहे थे बिकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले ही ब्रिटिश ने वीवर्स जो थे उनका कारोबार बर्बाद कर दिया था. यहाँ पे कपड़े मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री चौपट हो गई थी, तो यहाँ पे भी कपड़े चाहिए थे. तो वहां से ब्रिटेन से कपड़े अब यहाँ इंडिया में आते थे और वो अपने मुंह मांगे दाम पे यहाँ बेचते थे. तो इस तरह से जब इंडिया कॉलोनी बन गया ब्रिटेन का, तो उसका जो अपना एक्सपोर्ट कारोबार था, भारत एक समृद्ध देश हुआ करता था दुनिया का, वो अब इंपोर्टर बन गया ब्रिटिश गुड्स का, और इस तरह से हम लोग ब्रिटेन पे निर्भर हो गए. सो इन दिस वे मैनचेस्टर केम टू इंडिया. तो एक प्रोवर्ब है, मैनचेस्टर केम टू इंडिया मीन्स द गुड्स मेड इन मैनचेस्टर दे केम इन इंडिया, नॉट मैनचेस्टर सिटी. तो मैनचेस्टर में जो भी सामान बनते थे वो भारत में आने लगे, और यहाँ के भारत के लोग मजबूरी होकर उनको खरीदना पड़ा, क्योंकि भारत में उनको दूसरे गुड्स जो थे वो मिल नहीं रहे थे, और जो ब्रिटिश के अंडर में वो डेवलप नहीं कर पाए. सो इन द कोलोनाइजेशन द कॉलोनीज वेर ग्रेटली हार्म्ड. तो जब कॉलोनी बन गया भारत ब्रिटेन का, तो उसके जो अपने व्यापार थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए और वो ब्रिटिश के अधीन चले गए. और यूरोप का जो व्यापार था पर्टिकुलरली ब्रिटेन का, वो फ्लरिश किया, बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट था. इंडिया वॉज ए लार्ज मार्केट and this market was intended for the British development and interest. So Britain became rich on the cost of India. तो ब्रिटेन अमीर बना, भारत के जो था उसको ज्यादातर उपनिवेश बना के और उसको बदहाल करके ब्रिटेन अमीर बना. So in this way we can say that the colonization process in India, it destroyed the local handicrafts industries, and this led to the flow of Manchester made goods in India, which made the people's life very difficult. The weavers, they were at the mercy of the Britishers. Some of them left their jobs, some of them migrated to other places, and some of them became the servants of the British. So in this way, the people's life became very disturbed during the British rule. So that's all for today. Thank you very much for listening to me. Have a good day.